हाँ जी, स्टार्ट हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। My name is Dr. Tahir, and today we will be discussing about metabolic inherited liver disease. Metabolic and inherited liver disease, right? So, as you know, this is the classification. Metabolic liver disease, they are of following metabolic problems. They can cause the metabolic liver disease, which we call NAFLD, या नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज, या इसका दूसरा नाम जो है वो नैश भी है, NASH, नॉन अल्कोहलिक स्टीरोटो हेपेटाइटिस. This occurs in type 2 diabetes, obesity, and dyslipidemia, right? वीडियो खोल देना यार, वीडियो. Just wait for a minute. All right. So these are the metabolic diseases which can cause the NAFLD or NASH, right? These are the metabolic liver diseases. This is the category of metabolic liver disease. नेक्स्ट इज द इनहेरिटेड मेटाबॉलिक डिजीज. इसमें तीन इंपॉर्टेंट डिजीज जो हमने पढ़नी आज, हेमोक्रोमेटोसिस, विल्सन्स डिजीज और अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी. नाउ दिस इज जो थोड़ा सा नैश का मैं आपको एस्ट्रोलॉजिकल पिक्चर बता दूं कि इसमें ये आप देख रहे हैं जैसे कि दीज आर द लार्ज वेसिकुलर फैटी डेपोजिशन इन दी हेपेटोसाइट्स, और यहाँ पर ये हिमोटॉक्सिलिन इयोसिन स्टेन है, और ये जो है ये ट्राइक्रोम स्टेन है जो कि शो कर रहा है कि देयर इज इन दिस नैश या NAFLD देयर इज ब्लू कलर के ये जो आपको फाइब्रोसिस नजर आ रहा है पेरी साइनोसाइटल, ये साइनोसाइड है और ये इसके इर्द गिर्द जो है ये फाइब्रोसिस है, और ये बैकग्राउंड में NAFLD है. सो NAFLD इज अ रिस्क फैक्टर फॉर hepatic cirrhosis, right? Now we'll study hemochromatosis. This term was first described by von Ricklingson in 1889, and this is characterized by excessive deposition of iron in the body, different body parts, or the most important enzyme, the body organs where this excessive iron deposits is liver and the pancreas. So basically it's of two types: primary हेमोक्रोमेटोसिस, या जिसको हम HHC भी कहते हैं, हेरिडिटरी हेमोक्रोमेटोसिस, राइट? HHC टर्म यूज होगी आगे लेक्चर में, सो वो आपको पता होना चाहिए कि दिस इज फॉर हेरिडिटरी हेमोक्रोमेटोसिस, राइट? And it's a homozygous recessive inherited disorder, right? As you know, the homozygous disorders जो हैं वो उस वक्त एलिसिट होते हैं या वो नजर आते हैं जब दोनों अलील्स जो हैं उनके अंदर ये डिफेक्ट मौजूद हो. सो इट्स अ होमोजाइगस रिसेसिव इनहेरिटेड डिसऑर्डर, एंड जो इसका डिफेक्ट है वो यही होता है कि एक्सेसिव आयरन की डिपोजिशन होती है बॉडी में. Now these are the few other primary hemochromatosis. So one is hereditary hemochromatosis HHC, and other are congenital aceruloplasminemia, जिसमें कि congenitally ceruloplasmin जो है वो एब्सेंट होता है, वो भी लिवर में आयरन को डिपॉजिट करवा देता है. फिर इसी तरह अगर ट्रांसफेरिन जो है एक आयरन की ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है वो कंजेनिटली एब्सेंट हो तो फिर भी देयर इज प्राइमरी hemochromatosis, right? Then although it's not inherited, but because it is linked to the topic, so I included के hereditary जो secondary hemochromatosis की क्या causes होती हैं. There are certain condition जिसमें के liver और दूसरे organs में iron की excessive deposition होती है, but it is not due to some genetic disorder, but it is secondary to some other problems, like अगर किसी को मल्टीपल ट्रांसफ्यूजन्स होते हैं, फॉर एग्जांपल
थैलेसीमिया वाले जो पेशेंट्स हैं उनको, या और बहुत सारी कंडीशंस हैं जिसमें के मल्टीपल ट्रांसफ्यूजन्स की ज़रूरत होती है, सो उनमें दे गेट एक्सेसिव, बिकॉज आरबीसी के अंदर आयरन होता है, आपको पता है, इन द फॉर्म ऑफ हीमोग्लोबिन globulin hemoglobin. So this heme content is the iron content. So excessive जो ट्रांसफ्यूजन होते हैं उसमें आयरन ओवरलोड हो जाता है बॉडी के अंदर, and we will call this hemosiderosis. So you should remember that hemochromatosis is basically the term which is used for hereditary disease, and hemosiderosis is the term which is used for acquired causes, जैसे कि मैंने बताया different causes उसमें. So ये आपको पता होना चाहिए hemochromatosis और hemosiderosis में क्या difference होता है. Now this is a list of secondary iron overload causing problems. इसमें there are certain anemias like thalassemia, जैसे हमने जिक्र किया है, बजाते खुद वो एक risk factor है for iron deposition. फिर sideroblastic anemias जो हैं, they are also they would be causing the iron overload because of increased iron in the circulating blood, and that get deposited in the tissues, abnormally deposited. Then there is an enzyme called pyruvate kinase. If it is absent, it helps in the proper redirection of the iron. So if it is not there, this iron would be abnormally deposited in the tissues. फिर अगर आप डाइट में बहुत ज्यादा आयरन ले रहे हैं, so dietary overload is another cause of secondary iron load in the blood. But alcoholics जो हैं, they are also prone to develop this iron overload. Now this iron, so far we are talking about, is a plain iron. I mean, it's a simple form of. Now there are certain conditions जिसमें कि iron जो है, it is deposited in combination with other substances. This is called the complex iron overload, right? और ये जो conditions हैं, इसमें most important is juvenile hemochromatosis, right? Then is neonatal hemochromatosis. Then alcoholic liver disease. Then porphyria cutanea tarda. It's a form of the porphyria. Porphyria आपको पता है एक metabolic disease है. और last is African iron overload. So these five causes, in these five causes, iron would be deposited in the complex form in the body, in different organs of the body, right? Next is the this is the iron normally जो है, जो नॉर्मल पूल है बॉडी का, उसमें 2 to 6 ग्राम एडल्ट में आयरन मौजूद होता है, और उसमें से 0.5 ग्राम इज डिपॉजिटेड इन द लिवर, और 98% जो है ये हेपेटोसाइट में आयरन. सो क्वाइट बिग अमाउंट ऑफ द बॉडी आयरन इज डिपॉजिटेड इन द लिवर. लेकिन हेमोक्रोमेटोसिस में क्या होता है कि दिस अमाउंट it may exceed 50 grams, 60 ग्राम तक, 20 to 60 grams जो है वो बॉडी का आयरन कंटेंट हो जाता है. और उसका जो 1/3 है, ये जैसे हमने देखा है, ऑलमोस्ट इसका 1/3 जो है वो 0.5 ग्राम है. सो 1/3 ऑफ इट वुड बी डिपॉजिटेड इन द लिवर. सो देयर यू कैन इमेजिन के कितनी हैवी क्वांटिटी आयरन की जो है वो लिवर के अंदर डिपॉजिट हो जाएगी. सो this happens in hemochromatosis, right? 50 gram or 60 gram, some books say. So that is the abnormalities. अब hemochromatosis के features क्या होते हैं? इसमें most important जो है कि all of these patients, they have micronodular cirrhosis. सिरोसिस को हम 2 टाइप्स पे डिवाइड करते हैं, माइक्रोनोडुलर और मैक्रोनोडुलर. सो जो छोटे छोटे से on their physiological and their morphological appearance of the liver, micronodules will be there, and there would be cirrhosis. So micronodular cirrhosis होता है इन patients में. 75 to 80% of hereditary hemochromatosis patient, they would be having diabetes mellitus, because this excessive iron deposit in the islets of Langerhans जो pancreas के होते हैं, and these produce insulin producing islets, they get damaged, and ultimately patient would be having
diabetes mellitus. Then there is the same percentage, 75 to 80% में skin pigmentation होती है. So this iron get deposited in the skin and that gets pigmented. So we call this disease diabetes जो है इन ये वाले जो diabetics हैं क्योंकि उनकी स्किन का जो कलर है वो ब्रॉन्ज जैसे ब्रॉन्ज का कांसी जिसे हम कहते हैं ब्रॉन्ज की शेप की तरह का उसका पिगमेंटेशन होता है सो वी कॉल दिस डायबिटीज द ब्रॉन्ज डायबिटीज राइट now these are the places where this excessive iron deposits in HHC now HHC आपको पता होना चाहिए कि this is hereditary hemochromatosis we are talking of hereditary hemochromatosis so first of all most important is the liver right जिसकी वजह से सिरोसिस होता है पेंक्रियाटिक आइलेट्स का मैंने अभी जिक्र किया है इसकी वजह से डायबिटीज हो जाती है एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो हैं वो बहुत सारे इन्वॉल्व उनमें आयरन डिपॉजिट हो जाता है उसकी वजह से उन ग्लैंड्स का फेलियर होता है जिसकी वजह से एंडोक्रिनोपैथीज हो जाती हैं वो मैं आपको अगले स्लाइड में भी दिखाता हूँ इसी तरह जॉइंट्स में ये आयरन डिपॉजिट हो जाता है और पेशेंट कैन हैव ऑस्टियोआर्थराइटिस हार्ट जो है ये एक इट्स अ वेरी इम्पॉर्टेंट प्लेस बिकॉज हार्ट के अंदर आपका जो है वो कंडक्शन सिस्टम होता है जिसकी वजह से आपका हार्ट बीट करता है आपके जो पेस मेकर होता है फिर वहां से एसए नोड एवी नोड प्रकंजर सिस्टम सो जब ये हार्ट इन्वॉल्व होता है तो ये जो सिस्टम है ये भी इफेक्ट होता है right so in patients of hereditary hemochromatosis we can have the cardiomyopathy heart का जो अपना मसल है वो वीक हो जाता है जिसकी वजह से हार्ट फेलियर होता है या फिर अगर कंडक्शन सिस्टम पे डिपोजिशन हो जाए तो फिर वी कैन हैव एरिथमियाज राइट और सबसे पहले जो डिपॉजिट लिवर में होते हैं वो पेरीपोर्टल हेपेटोसाइट्स हैं ठीक है ना और फिर बाद वाले होते हैं वो जैसे मैंने आपको प्रीवियस पिक्चर में दिखाया था NAFLD की तो पोर्टल सिस्टम जो है आपका उसके इर्द गिर्द जो हेपेटोसाइट्स होते हैं सबसे पहले वहां आयरन डिपॉजिट होता है नाउ बिकॉज वी सेड कि इट्स अ हेरिडिटरी डिजीज तो इसके जेनेटिक एबनॉर्मेलिटीज होती हैं और 4 वेरिएंट्स जो हैं दे आर रिकॉग्नाइज्ड इसके 4 वेरिएंट्स हैं जेनेटिक वेरिएंट्स और मोस्ट कॉमन फॉर्म जो है उसमें ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज ऑफ द एडल्ट it is called by mutation in the HFE gene. Now, what is this HFE gene, right? So, एक gene है जिसका नाम है HFE और इसकी mutation होती है. So, it will cause the the hemochromatosis. अब HFE जो है उसका आपने देखना है कि HFE stands for H stand for hemochromatosis and FE आपको पता है आयरन जो है इसको हम क्या कहते हैं इसका जो है वो नेम केमिस्ट्री में इसका नाम फेरिस है या फेरिक है सो Fe स्टैंड फॉर आयरन सो हेमोक्रोमेटोसिस ड्यू टू आयरन राइट सो दिस इज द HFE जीन जिसकी म्यूटेशन होती है 90% जो पेशेंट्स हैं दे आर होमोजाइगस फॉर द सिंगल पॉइंट म्यूटेशन अब ये जो HFE प्रोटीन जो होती है आपको पता है हर जीन जो है वो एक प्रोटीन प्रोड्यूस करता है राइट सो HFE जीन जो है वो HFE प्रोटीन प्रोड्यूस करेगा अब ये जो HFE प्रोटीन बनती है 90% जो पेशेंट्स होते हैं हेमोक्रोमेटोसिस के हेरिडिटरी हेमोक्रोमेटोसिस के उनमें एक सिंगल पॉइंट का म्यूटेशन होता है और वो क्या होता है कि जो सिस्टीन है इट इज रिप्लेस्ड बाय टायरोसिन इन पोजीशन 282 सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड C282Y यानी सिस्टीन इज रिप्लेस्ड बाय टायरोसिन इसमें Y जो है वो टायरोसिन का Y डाला हुआ है सो C282Y जो है वो HFE प्रोटीन में होती है यानी कि जिसमें कि नॉर्मली जहां सिस्टीन होनी चाहिए वहां पर टायरोसिन आ जाती है 90% पेशेंट जो हैं वो उनमें ये वाली एबनॉर्मेलिटी होती है बाकी जो कुछ स्मॉल परसेंटेज है उसमें इस एबनॉर्मेलिटी के अलावा ये तो होती है इन एडिशन टू दिस डिफेक्ट देयर इज अनदर डिफेक्ट जिसमें के हिस्टाडीन जो है वो एस्पार्टिक एसिड से रिप्लेस हो जाती है राइट पोजीशन 63 पर हिस्टाडीन इज रिप्लेस्ड बाय aspartic acid so ND
एच यहाँ पर हिस्टाडीन को शो कर रहा है, डी जो है वो एस्पार्टिक एसिड, सो डी स्टैंड फॉर एसिड, सो H63D। ये भी कुछ परसेंटेज वाले जो पेशेंट्स हैं, कुछ परसेंटेज के जो पेशेंट हैं उनमें 90% ये वाली एबनॉर्मेलिटी होती है और 10% ये वाली। इसका मतलब है जो पेशेंट जिनमें के सारी की सारी ये वाली एबनॉर्मेलिटीज है उसमें तो बड़ी स्वीयर फॉर्म होगी, यानी जो C282Y वाले जो पेशेंट हैं उनमें बहुत स्वीयर फॉर्म होगी। लेकिन अगर ये वाला जो लेस स्वीयर म्यूटेशन है ये वाला भी साथ में शामिल होगा तो डिजीज आप समझें कि डिल्यूट हो जाएगी, सो डिजीज की स्वेरिटी उतनी नहीं रहेगी। सो दैट्स व्हाई द लेस स्वीयर फॉर्म में ये वाला डिफेक्ट भी मौजूद होता है इन एडिशन टू ये वाला डिफेक्ट। ठीक हो गया? Fewer than 50% of this homozygote will develop clinical feature of hemochromatosis, right? अब एक पेशेंट है जिसमें के अंदर ये सिर्फ ये वाला डिफेक्ट था, ठीक है, लेकिन उसमें डिजीज नहीं हुई है, राइट? सो 50% ऐसे पेशेंट होते हैं जिनमें के ये जो कि मेजर डिफेक्ट है ये होता है लेकिन फिर भी डिजीज नहीं होती है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अदर फैक्टर्स आर आल्सो इंपॉर्टेंट फॉर दी फॉर इमरजेंस ऑफ हेमोक्रोमेटोसिस, यानी कि सिर्फ ये डिफेक्ट होने से हेमोक्रोमेटोसिस नहीं हो जाएगा, और भी फैक्टर्स हैं जो कि अगर होंगे तो फिर पेशेंट को हीमोक्रोमेटोसिस क्लिनिकली डेवलप हो जाएगा। ठीक है? अब इसमें मेल जो हैं दे आर मोर इफेक्ट, 5 to 7 मेल और 1 फीमेल। सो इसकी रीजन क्या है कि क्यों क्यों मेल जो है वो ज्यादा? क्योंकि जो फीमेल आपको पता है वंस दे गेट टू देयर मेनार्की, उनको जो है मेंसेस स्टार्ट होते हैं, तो एवरी मंथ दे स्टार्ट लूजिंग अ गुड अमाउंट ऑफ आयरन। सो इसीलिए हमारी जो नॉर्मली फीमेल्स हैं वो अगर आयरन सप्लीमेंट नहीं लेती हैं तो वो एनीमिक हो जाती हैं। लेकिन अगर वो फीमेल को हीमोक्रोमेटोसिस है तो फिर क्या होगा कि उसका आयरन खुद ब खुद ही बॉडी में से लूज हो रहा है। सो एक ज्यादा मिकदार जो है वो जमा हो रही है उसकी बॉडी में, लेकिन तकरीबन आधी या उससे ज्यादा जो है वो हर महीने लूज कर रही है। इसीलिए जो मेल जो होते हैं उनमें ये जल्दी से डिजीज प्रेजेंट कर जाती है क्लिनिकली, जबकि फीमेल जो है उनमें ये लेट प्रेजेंट करती है। दैट इज व्हाई इट इज मेल प्रीडोमिनेंट। अच्छा, अब ये मैंने बता दिया आपको कि HFE जीन होता है। अब ये करता क्या है? HFE जीन जो है इट हेल्प्स इन दी रेगुलेशन ऑफ इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइटरी आयरन। जो आयरन हम खाते हैं वो आपकी इंटेस्टाइन में जाके एब्जॉर्ब हो जाता है, राइट? सो उसको ये वाला जो जीन है या ये जो जीन प्रोटीन प्रोड्यूस करता है ये उसको रेगुलराइज करती है, राइट? सो जब ये जीन में डिफेक्ट होगा तो आयरन जो है वो भी नॉर्मली ट्रांसपोर्ट नहीं होगी जहां पर उसको होना चाहिए, तो इसकी वजह से ब्लड के अंदर आयरन की मिकदार बढ़ती रहती है और आयरन की जो इंटेस्टाइन में से एब्जॉर्प्शन है वो 0.5 to 1 ग्राम पर ईयर जो है वो एक्यूमुलेट होती जाती है बॉडी के अंदर। दैट्स व्हाई द पेशेंट वुड अल्टीमेटली डेवलप हीमोक्रोमेटोसिस। सो दिस इज द फंक्शन ऑफ HFE जीन। अब ये करता कैसे है? हेप्सिडिन जो है वो एक आयरन का हार्मोन होता है जो कि लिवर जिसको प्रोड्यूस करता है, राइट? सो हेप्सिडिन नॉर्मली डाउन रेगुलेट द इफ्लक्स ऑफ आयरन फ्रॉम द इंटेस्टाइन एंड मैक्रोफेजेस इनटू द प्लाज्मा एंड इनहिबिट आयरन एब्जॉर्प्शन। सो हेप्सिडिन जो है बेसिकली इसका एक आप समझ लें इनहिबिटरी इफेक्ट है। क्या करता है ये जो इफ्लक्स ऑफ आयरन होता है, इन इफ्लक्स कहते हैं बाहर निकलना, इनफ्लक्स होता है अंदर आना। सो इंटेस्टाइन के अंदर आयरन मौजूद है, अब इसका इफ्लक्स यानी कि इंटेस्टाइन में से निकल के ब्लड में जाना, इसको कहते हैं इफ्लक्स ऑफ आयरन फ्रॉम इंटेस्टाइन एंड माइक्रोफेजेस इनटू द प्लाज्मा। सो इसको जो है वो इनहिबिट करता है ये, राइट? सो इसीलिए जो जब ये HFE जीन एबनॉर्मल होता है सो ये जो इनहिबिशन है ये खत्म हो जाती है, जिसकी वजह से इंटेस्टाइन और मैक्रोफेजेस जो हैं उसमें से एक लार्ज क्वांटिटी ऑफ आयरन जो है वो ब्लड के अंदर आ जाता है, राइट? सो जब हेप्सिडिन के लेवल रिड्यूस होते हैं तो देयर इज इंक्रीज आयरन एब्जॉर्प्शन। सो दिस इज हाउ द HFE जीन this it functions.
नाउ द क्लिनिकल फीचर्स क्या होते हैं इसके? क्लिनिकल फीचर्स में जैसा कि मैंने आपको बताया है कि ये डिफरेंट ऑर्गन्स में डिपॉजिट होता है. सो मोस्ट इंपॉर्टेंट इज लिवर. सो हेपेटोमेगैली होगी, उसकी वजह से एब्डोमिनल पेन भी होगी. स्किन की पिगमेंटेशन, जैसे मैंने बताया था, ब्रॉन्ज कलर हो जाता है स्किन का. डायबिटीज डेवलप हो जाती है. एरिथमियाज एंड कार्डियोमायोपैथी मैंने एक्सप्लेन कर दिया पहले. जॉइंट्स में जाता है तो जॉइंट पेन, आर्थराइटिस. सो इन पेशेंट को अर्ली ऑस्टियोआर्थराइटिस हो जाता है. फिर इसी तरह एमेनोरिया होता है, लॉस ऑफ लिबिडो होता है, इम्पोटेंस. ये इफेक्ट वो हैं जो कि आयरन जो है वो टेस्टिस और ओवरीज में भी जाके एबनॉर्मली डिपॉजिट होता है. सो दिस विल हैपन व्हेन द आयरन डिपॉजिट्स इनटू द जेनिटल ऑर्गन्स, जिसका ओवरी एंड टेस्टिस होता है. अब ट्रायड ऑफ सिरोसिस किसे कहते हैं? ट्रायड ऑफ सिरोसिस कहते हैं हेपेटोमेगाली, स्किन पिगमेंटेशन एंड डायबिटीज. दिस इज कॉल्ड ट्रायड ऑफ सिरोसिस, ये याद रखना है. अब इन पेशेंट्स में डेथ क्यों होती है, यानी क्यों ये डिजीज इतनी खौफनाक है? क्योंकि ये सिरोसिस कॉज कर देती है. और आपको पता है जब सिरोसिस होता है तो उसके साथ हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा के भी चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि आपका जो लिवर है वो एबनॉर्मल उसके अंदर ग्रोथ शुरू हो जाती है. इसी तरह कार्डिक डिजीज यानी कार्डियोमायोपैथी होगी, कंजस्टिव कार्डिक फेलियर होगा, पेशेंट की डेथ हो सकती है. कार्डिक अरिथमियाज होंगे अगर वहां पर इन्वॉल्वमेंट है परकंजस सिस्टम वगैरह की, या ऐसे नोट की, या पेसमेकर की, तो फिर कार्डिक डिजीज भी होती है. ये एक थोड़ी सी ब्लर सी है पिक्चर जो कि इसके शो कर रही है. पिट्यूटरी में इन्वॉल्वमेंट अगर डिपॉजिट होता है तो गोनेडोट्रोफिन और एमएसएच जो है. सो यहाँ पर ये रीजन है कि क्यों ब्रॉन्ज कलर हो जाता है स्किन का, कि पिट्यूटरी के अंदर से एमएसएच जो है वो मेलेटोनिन, मेलानिन की तरह का होता है, तो इसलिए इसकी जो एक्सेसिव प्रोडक्शन होती है तो इसलिए ब्रॉन्ज कलर होता है. लिवर की बायोकेमिस्ट्री चेंज हो जाती है. सिरोसिस होता है, हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा होता है, टेस्टिकुलर एट्रोफी, इम्पोटेंस होती है, आर्थ्रोपैथी जो है. इसमें एक चीज याद रखनी है कि जो ऑस्टियोआर्थराइटिस है नॉर्मली वो लार्ज जॉइंट्स में होता है, लेकिन ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें कि मेटाकार्पो फिलेंजियल या मेटाटार्सो फिलेंजियल जॉइंट्स जो हैं उनके अंदर ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है. वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है कौन से जॉइंट को इन्वॉल्व करता है. और फिर कॉन्ड्रोकैल्सिनोसिस, आपकी जो कार्टिलेज है उसकी कैल्सिफिकेशन हो जाती है. डायबिटीज का बता दिया मैंने, ये भी बता दिया, कंडक्शन, कार्डियोमायोपैथी एंड कंडक्शन डिफेक्ट्स, इंक्रीज स्किन पिगमेंटेशन बिकॉज ऑफ दिस इफेक्ट. फिर इसी तरह अगर थायराइड के अंदर आयरन ज्यादा डिपॉजिट हो जाए, सो इट वुड कॉज थायराइड डैमेज एंड हाइपोथायराइडिज्म, राइट. ये जो ट्रीटमेंट जब हम करते हैं, स्पेशली मैं आपको बताऊंगा बाद में, तो उसकी वजह से आयरन रिमूव हो जाता है बॉडी में से, लेकिन हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा का रिस्क खत्म नहीं होता. क्यों? क्योंकि जो डीएनए जो डैमेज होता है डीएनए को बिकॉज ऑफ दी ऑक्सीडेटिव आइंस, आपके पता है आपके फ्री रेडिकल्स जो होते हैं दे आर डैमेजिंग. सो जब ये फ्री रेडिकल्स बन जाते हैं, डीएनए को डैमेज कर देते हैं, तो फिर डीएनए एट इज ओन हो जाता है और हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा. सो उस स्टेज से पहले पहले हमने अगर पेशेंट को ट्रीट कर लिया तो फिर हम उसको बचा लेते हैं हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा से, अदरवाइज ये हो जाता है. अब इसकी जो डायग्नोसिस है उसकी उसमें क्या क्या होता है? फेरेटिन और आयरन जो है प्लाज्मा के अंदर वो बढ़ जाते हैं. आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी जो है वो सैचुरेट होती है. सो दिस इज रिड्यूस्ड आयरन, इंक्रीज आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी. सो क्या होता है कि ट्रांसफेरिन जो है ये सैचुरेट हो जाता है. ट्रांसफेरिन क्या है? वो प्रोटीन जिसके साथ आयरन ट्रेवल करता है, कैरियर प्रोटीन है. सो अगर 45% से ज्यादा जो आपकी ट्रांसफेरिन है वो सैचुरेट हो गई है, यानी उसके ऊपर ऑलरेडी आयरन लगा हुआ है, सो दिस इज सजेस्टिव ऑफ एच सी, हेमोक्रोमेटोसिस, राइट. अब सिग्निफिकेंट लिवर डिजीज कब होती है? एक खास आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता रहता है फेरेटिन लेवल, लेकिन अगर फेरेटिन का लेवल 1000 माइक्रोग्राम पर लीटर से ज्यादा होता है तो फिर आपकी जो है वो सिग्निफिकेंट डिजीज डेवलप होती है. नेक्स्ट, हम पेशेंट में लिवर बायोप्सी करते हैं और उसमें वी डिटेक्ट दी हेपेटिक आयरन इंडेक्स. ये एक टर्म है जिसमें कि आप लिवर बायोप्सी कर लेते हैं और उसमें देखते हैं कि पर ग्राम ऑफ जो ड्राई लिवर है, लिवर का हम ड्राई वेट निकालते हैं, कैलकुलेट करते हैं, और फिर हम देखते हैं पर ग्राम के अंदर कितना आयरन है. सो नंबर ऑफ माइक्रोमोल्स
पर ग्राम ऑफ ड्राई लिवर पर एज इन ईयर्स। यानी ये जो 3 फैक्टर्स इसमें होते हैं, एक तो ये पेशेंट की एज, फिर पर ग्राम, और फिर क्वांटिटी ऑफ आयरन। सो लिवर बायोप्सी करके और आप हेपेटिक आयरन इंडेक्स निकालते हैं। So in addition to HFE gene, we can also detect the other one H63D, जो मैंने बताया था कि हिस्टाडीन जो है वो एस्पार्टेट से एस्पार्टिक एसिड से 63 पोजीशन पे चेंज होती है। सो ये दोनों म्यूटेशंस जो हैं ये आजकल क्लिनिकल प्रैक्टिस में वी कैन डिटेक्ट विद द हेल्प ऑफ जेनेटिक। आप किसी पेशेंट का जो जेनेटिक मेकअप चेक करते हैं, सो आप उसमें ये डिफेक्ट डिटेक्ट कर सकते हैं। अब इसकी जो ट्रीटमेंट है वो ये है कि वीकली आप 500 ml ब्लड, जिसके अंदर 250 मिलीग्राम आयरन ऑलमोस्ट होता है 500 ml में, वो आप निकालते रहते हैं वीकली। और आपका एम ये होता है कि आपने फेरेटिन को लेस देन 50 माइक्रोग्राम पर लीटर पे लाना होता है। सही। सो 1000 से हम उसको 50 पे लेके आते हैं, फिर कहीं जाके डिजीज कंट्रोल होती है, और इस प्रोसेस में 2 साल तक लग सकते हैं। सो 2 साल तक पेशेंट का आप वीकली वीनी सेक्शन करें। वीनी सेक्शन का मतलब है कि ब्लड निकाल लेते हैं उसका, या वो किसी को डोनेट कर देते हैं या ज़ाया कर देते हैं। लिवर और कार्डिक प्रोफाइल जो हैं वो इम्प्रूव कर जाते हैं ट्रीटमेंट के साथ, लेकिन जो बोन पेन्स हैं या जॉइंट ऑस्टियोआर्थराइटिस है, ये बहुत कम इम्प्रूव करता है, बल्कि काफ़ी केसेस ऐसे होते हैं जिसमें कि ये ज़्यादा एग्रीवेट हो जाते हैं। इसी तरह डायबिटीज़ एक दफ़ा जब हो जाए तो फिर ये नहीं ख़त्म होती है। अब इन पेशेंट के अंदर जो सिरोसिस और डायबिटीज़ होती है उसको हम ऐसे ही ट्रीट करते हैं जैसे कि हम बाकी पेशेंट्स ऑफ सिरोसिस एंड डायबिटीज़ को ट्रीट करते हैं। फर्स्ट डिग्री रिलेटिव को ज़रूर स्क्रीन करना चाहिए, और इसका तरीका ये होता है कि पहले हम उनके LFT और फेरेटिन लेवल चेक करते हैं। अगर ये दोनों ज़्यादा हैं एक ख़ास लेवल से, सो फिर हम वी गो फॉर लिवर बायोप्सी, बिकॉज अर्ली जितना आप डायग्नोज करेंगे और ट्रीटमेंट शुरू कर देंगे उतना कॉम्प्लिकेशन रेट कम हो जाएगा, राइट। एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट जो होते हैं, अगर वो एक ख़ास लेवल से ज़्यादा जिनका के एक ख़ास लेवल से ज़्यादा ये फेरेटिन लेवल 1000 से ज़्यादा आ गया, पेशेंट एसिम्प्टोमेटिक है, फिर भी आप उसको ट्रीट करते हैं विद वीनी सेक्शन। अब प्रोग्नोसिस क्या होता है कि अगर पेशेंट को आपने प्री सिरोटिक स्टेट पे पकड़ लिया, सो लाइफ नॉर्मल हो जाएगी, नॉर्मल एक्सपेक्टेंसी है लाइफ की। और अगर इवन इनको सिरोसिस भी हो गया तो जो बाकी कॉजेज होती हैं सिरोसिस की, जैसे कि हेपेटाइटिस बी है, सी है, इन पेशेंट में जो सिरोसिस होता है वो जो है उसका जो प्रोग्नोसिस है वो ज़्यादा ग्रेव है एज कम्पेयर टू दिस। इसके सिरोसिस वाले 75% पेशेंट जो हैं वो अलाइव होते हैं 5 साल के बाद, जबकि वो जो है हेपेटाइटिस बी और सी की वजह से जो सिरोसिस होता है उसमें पेशेंट बहुत सारे जो हैं 5 साल से पहले ही उनकी डेथ हो जाती है। इसकी जो मोस्ट ड्रेडफुल कॉम्प्लिकेशन है वो है HCC, हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा, और ये 1/3 ऑफ द पेशेंट ऑफ HHC। अपने ये कंफ्यूज नहीं होना, HCC इज हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा एंड HHC इज हेरिडिटरी हीमोक्रोमेटोसिस, सही। सो 1/3 पेशेंट जो हैं HHC के उनमें हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा हो जाता है, राइट। वीनी सेक्शन से आप उसके इंसिडेंस को कम कर सकते हैं, लेकिन बिल्कुल अबॉलिश नहीं करते। इसकी क्या रीजन है? इसकी रीजन ये है, मैंने जैसे बताया था कि फ्री रेडिकल्स इंजरी होती है, और फ्री रेडिकल DNA को जब डैमेज कर देते हैं एक दफा तो फिर वो हो जाता है। अब नेक्स्ट टॉपिक इज विल्सन्स डिजीज। ये एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है, इसमें कॉपर की डेपोजिशन होती है, और जो मेन म्यूटेशन जैसे हमने उसमें बताया था, इसमें जो म्यूटेशन होती है दैट इज ATP7B। दिस इज अ जीन जिसकी के म्यूटेशन होती है, राइट। सो विल्सन डिजीज इज द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मेटाबॉलिक लिवर डिजीज। अब इसमें देर इज एक्सेसिव आयरन deposition. It is caused by mutation in the ATP7B gene. एंड इस जीन का काम क्या होता है कि कॉपर की जो एक्सक्रीशन है, कॉपर जब आप खाते हैं तो वो स्टमक से और इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होके लिवर के अंदर चला जाता है, वहां से बाइल में कॉन्सेंट्रेट होता है, और बाइल से ये जाके जो है वो बाइल में जब जाता है तो लिवर के एंजाइम, लिवर के साथ ये लिवर सिक्रीशन के साथ सिक्रीट हो जाता है, लेकिन इसकी एक्सक्रीशन इस डिजीज में कम हो जाती है, राइट। एंड दिस फेल्स टू इनकॉर्पोरेट
कॉपर इनटू सेरुलोप्लाज्म। अब कॉपर जो है वो नॉर्मल उसका जो वो बॉडी में यूज होता है वो सेरुलोप्लाज्मिन के साथ बाइंड होने के बाद होता है, राइट। सो इसमें क्या होता है कि इट फेल्स टू इनकॉर्पोरेट विद दिस सेरुलोप्लाज्मिन। सो कॉपर सेरुलोप्लाज्मिन के साथ कंबाइन नहीं हो सकता, जिसकी वजह से बॉडी में कॉपर का लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है। विल्सन डिजीज में सेरुलोप्लाज्मिन का हमेशा सिंथेसिस का फेलियर होता है, राइट। सो जो डिफेक्ट मैंने बताया है आपको, वो जो जीन का नाम लिया था, वो अल्टीमेटली सेरुलोप्लाज्मिन के साथ, उसकी प्रोडक्शन के साथ रिलेशन है। सो जब ये सेरुलोप्लाज्मिन बनेगा नहीं तो कॉपर फिर किस चीज के साथ कंबाइन करेगा, राइट। सो सेरुलोप्लाज्मिन जो है वो इनका सिंथेसिस इन पेशेंट में कम होता है, लेकिन 5% ऐसे पेशेंट भी होते हैं जिनमें कि सेरुलोप्लाज्मिन नॉर्मल होता है, फिर भी उन पेशेंट को विल्सन डिजीज हो जाती है, सही। अब इसमें जो ऑर्गन लिवर भी एज जैसे कि हीमोक्रोमेटोसिस में होता था। फिर बहुत इंपॉर्टेंट बेसल गैंग्लिया हैं। बेसल गैंग्लिया आपको पता है हमारी जो मूवमेंट्स हैं उनको कंट्रोल करते हैं, राइट। सो बेसल गैंग्लिया के अंदर भी कॉपर डिपॉजिट हो जाता है, आईज के अंदर कॉपर डिपॉजिट हो जाता है, किडनीज में, स्केलेटन में। सो दीज आर द प्लेसेस जहां पर विल्सन डिजीज अफेक्ट करती है। ये जो जीन है ये एनकोड करता है मल्टीपल कॉपर ट्रांसपोर्टिंग पी टाइप एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेटेज फैमिली, राइट। ये जो सेरुलोप्लाज्मिन है ये इस फैमिली का एक पार्ट है, सही है। सो सेरुलोप्लाज्मिन और बहुत सारी ऐसी ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है जिसको ये वाला जीन जो है वो हेल्प करता है, और ये जो प्रोटीन्स हैं दे हेल्प टू एक्सपोर्ट द कॉपर फ्रॉम वेरियस सेल टाइप्स, सही है। वेरियस सेल से निकाल के ये इसको एक्सपोर्ट करते हैं। सो जब ये जीन डिफेक्टेड होगा, सेरुलोप्लाज्मिन नहीं बनेगा, तो फिर क्या होगा कि पेशेंट जो है वो उनको दे वुड हैव दिस विल्सन्स डिजीज, ठीक है। 200 टाइप्स ऑफ जेनेटिक म्यूटेशंस वो डिटेक्ट होती है। उसमें तो हमने कहा था ना कि 2 होती हैं सिर्फ, ठीक है, हीमोक्रोमेटोसिस। इसमें 200 के करीब जेनेटिक म्यूटेशन होती हैं। लेकिन इसका और हेरिडिटरी हीमोक्रोमेटोसिस का फर्क ये है कि इसमें जो जीन्स हैं वो क्लिनिकली उनकी कोई सिग्निफिकेंस नहीं है और डायग्नोस्टिक उनकी कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है। लेकिन फैमिली स्क्रीनिंग में उसकी इंपॉर्टेंस है। अभी क्या होता है कि डेफिशिएंसी ऑफ दिस प्रोटीन कॉजेज डिक्रीज इन द कॉपर ट्रांसपोर्ट इनटू द बाइल एंड इट इंपेयर्स इट्स इनकॉर्पोरेशन इनटू सेरुलोप्लाज्मिन, वही बात जो पहले बता दी है, एंड इट इनहिबिट द सेरुलोप्लाज्मिन सिक्रीशन इनटू द ब्लड, ठीक है। अब these changes cause copper accumulation in the liver and other organs and decrease the circulating ceruloplasmin. अब ये जो कॉपर होता है ये जब बॉडी में बढ़ जाता है तो ये कैसे डैमेज करता है? सो इट डैमेज द लिवर एंड ऑल द अदर ऑर्गन्स, जिसका अभी हमने जिक्र किया है, बाय द प्रोडक्शन ऑफ रॉस। रॉस क्या होते हैं? रिएक्टिव, ऑक्सीडेटिव, जिसे हम फ्री रेडिकल्स कहते हैं, रिएक्टिव oxygen species, sorry. So it is the reactive oxygen species, ROS, free radicals. अब अगर हम मॉर्फोलॉजी देख लें तो इन्फ्लेमेशन होती है, हेपेटोसाइट का नेक्रोसिस हो जाता है, माइक्रोवेसिकुलर स्टीटोसिस जो मैंने डायग्राम शुरू में आपको दिखाई थी वो हो जाता है, हेपेटोसेलुलर न्यूक्लियाई जो हैं वो वैक्यूलेटेड हो जाते हैं। नॉर्मली न्यूक्लियस के अंदर वैक्यूल नहीं होता, लेकिन ये वैक्यूलेटेड। और मेलरी बॉडीज, ये इंपॉर्टेंट एक चीज है जो कि जब आप अंडर द माइक्रोस्कोप देख रहे होते हैं तो ये, और फिर अल्टीमेटली सिरोसिस डेवलप अर्ली एज पे होता है। ये वो जो था वो 40 के बाद होता था, ये 6 इयर्स की एज से स्टार्ट होता है और 40 तक जाता है। इस दौरान में डायग्नोज होता है। 6 इयर्स पे पेशेंट को क्या होता है? एक्यूट अटैक्स होते हैं, रिकरेंट अटैक्स ऑफ एक्यूट हेपेटाइटिस, और इन अटैक्स की वजह से पेशेंट कैन आल्सो हैव लिवर फेलियर, फुलमिनेंट लिवर फेलियर हो सकता है। अच्छा, इसमें एक और इंपॉर्टेंट बात है कि जब कॉपर बॉडी में ज्यादा होता है तो सडनली लार्ज अमाउंट ऑफ कॉपर कैन बी थ्रोन इनटू द सर्कुलेशन and this causes massive hemolysis. This is a very important clinical thing which you should remember कि massive hemolysis हो सकता है इस कॉपर की वजह से, और इस hemolysis की वजह से renal tubular damage भी हो जाता है, right? So massive hemolysis, renal tubular damage, this is a very important feature of this disease. न्यूरोसाइकेट्रिक प्रॉब्लम, हमने बेसल गैंग्लिया की बात की थी, उसमें ट्रेमर्स हो जाते हैं, पार्किंसनिज्म, कोरिया और एथिटोसिस।
कोरियो एथिटोसिस जो मूवमेंट होती हैं, सेमी पर्पसफुल पेशेंट जो है वो ऐसे 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 देखा होगा आपने, कर रहे होते हैं, ऐसे कर रहे होते हैं. सो दीज आर द कोरियो. और हाथ की जो है एथिटॉइड, एथिटॉइड कहते हैं वर्म को, वर्म लाइक मूवमेंट जो होती है, सो वो इनमें हो जाती हैं, राइट. सो जब ये बेसल गैंग्लिया को डैमेज करता है. इसी तरह रीनल ट्यूबुलर डैमेज, फिजिकली कॉपर कैन गेट डिपॉजिटेड इनटू द ट्यूब्यूल एंड इट कैन कॉज द रीनल ट्यूबुलर डैमेज. इसी तरह जब ये बोन्स में जाता है तो ऑस्टियोपोरोसिस और ऑस्टियोआर्थराइटिस कर देता है. अब इसकी क्या डिक्रीज इन द सीरम सेरुलोप्लाज्मिन प्रोडक्शन उसकी कम हो गई है. हेपेटिक कॉपर कंटेंट, जैसे हमने आयरन कंटेंट की बात की थी, सो ड्राई लिवर में हेपेटिक आयरन कॉपर कंटेंट हम चेक करते हैं. दिस इज अ मोस्ट एक्यूरेट टेस्ट और इससे हम डायग्नोज कर देते हैं लिवर बायोप्सी करके. और पेशेंट को स्पेशल कॉपर स्टेन्स के साथ हम देख लेते हैं कि कितना पर ग्राम ऑफ लिवर में कितना कॉपर है. इसी तरह 24 आवर जो अब आप वो करते हैं, इसका यूरिनरी कॉपर 24 आवर यूरिन जमा करते हैं और उसमें कॉपर को देख लेते हैं. ये मोस्ट स्पेसिफिक टेस्ट है. स्पेसिफिक और सेंसिटिव. स्पेसिफिक वो होता है कि जब वो टेस्ट हो जाए कंफर्म पॉजिटिव तो डिजीज कंफर्म होती है. सेंसिटिव का मतलब ये होता है कि पेशेंट जो है वो जो है जब वो डायग्नोज वो टेस्ट पॉजिटिव आता है तो चांसेस ज्यादा होते हैं कि पेशेंट को वही वाला मसला है, लेकिन नेगेटिव भी हो सकता है. सो अगर 0.6 माइक्रोमोल से ज्यादा कॉपर 24 आवर यूरिन में आता है तो फिर डायग्नोस्टिक होता है. लेकिन ये याद रखें कि ये टेस्ट हम उस वक्त करते हैं जब हम पेशेंट को डी पेनिसिलामीन जो है ये एक ड्रग है जो कि कॉपर को बॉडी में से निकालती है. अच्छा, आई जस्ट फॉरगॉट के रिपीटेड वीनी सेक्शन के अलावा एक ड्रग भी होती है हीमोक्रोमेटोसिस की ट्रीटमेंट में जिसे कि हम डेस्फ्रॉक्सामीन कहते हैं. ठीक है ना, ये सॉरी आई फॉरगॉट. डेस्फ्रॉक्सामीन जो है ये इसे आयरन चिलेटर कहते हैं और ये जो है ये कॉपर चिलेटर है, डी पेनिसिलामीन. अच्छा, केएफ रिंग्स या केसर फ्लैशर रिंग्स जो होते हैं, दीज आर ग्रीन टू ब्राउन डिपॉजिट ऑफ कॉपर इन दी डेस्मेंट मेम्ब्रेन इन द लिम्बस ऑफ द कॉर्निया. कॉर्निया का जो लिम्बस होता है, यानी लिम्बस कहते हैं जो उसका अपर क्वाड्रेंट होता है, उसके अंदर ये स्टार्ट होता है. और ये वेरी डायग्नोस्टिक ऑफ दिस. हियर यू कैन सी दैट दीज आर द फाइन कॉपर डिपॉजिट्स. ये स्टार्ट यहाँ से होता है लेकिन अल्टीमेटली पूरा एक रिंग बना देता है. दिस इज द केएफ रिंग, राइट. अच्छा, ये यूजुअली बच्चों में नहीं होता, एडल्ट्स में होता है 60% में. और जिन पेशेंट में न्यूरोलॉजिकल सिम्टम होते हैं विल्सन के, उसमें 100% में ये मौजूद होता है, राइट. ये याद रखना है, ऑलमोस्ट 100%. और अपर क्वाड्रेंट यानी लिम्बस से ये स्टार्ट होता है. और जब पेशेंट को हम ट्रीट कर देते हैं, ऐसा कॉपर बॉडी में नॉर्मल हो जाता है तो फिर ये गायब भी हो जाता है. सही. सो विल्सन की जो ट्रीटमेंट है उसमें अर्ली रिकॉग्निशन है, लॉन्ग टर्म कॉपर चिलेशन. चिलेशन थेरेपी, चिलेट का मतलब होता है कि उसको किसी चीज को चिलेट कर देना, यानी उसको निकाल देना बॉडी से बाहर. डी पेनिसिलामीन और ट्रायंटीन जो हैं, ये दो ड्रग्स हैं जो कि यूज होती हैं फॉर दी कॉपर चिलेशन. ठीक है. इसके अलावा कुछ जिंक बेस्ड थेरेपीज भी हैं. और अल्टीमेटली जो है वो लिवर ट्रांसप्लांटेशन इज द आंसर टू दिस डिजीज. देन द थर्ड of the metabolic liver disease is alpha 1 antitrypsin deficiency. अब ये भी एक autosomal recessive disorder है और this is so it's a hereditary it's not sorry metabolic नहीं है, it's a hereditary disorder of the liver. और इसमें जो अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन है इसके लेवल्स बहुत कम हो जाते हैं. सो अब अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन जो है इसका फंक्शन क्या है बॉडी के अंदर? द मेजर फंक्शन इज इनहिबिशन ऑफ प्रोटीएजेस. आपको पता है जब भी कभी इन्फ्लेमेशन होती है बॉडी में तो न्यूट्रोफिल्स उस जगह पहुंच जाते हैं. ठीक है, इन्फ्लेमेशन. अब ये जो न्यूट्रोफिल्स हैं ये रिलीज करते हैं एट द साइट ऑफ इन्फ्लेमेशन सर्टन प्रोटीएजेस, न्यूट्रोफिल इलास्टेजेस. सॉरी, जी, न्यूट्रोफिल इलास्टेजेस ये रिलीज करते हैं न्यूट्रोफिल्स. ये सॉरी ये जी,
सो ये न्यूट्रोफिल इलास्टिसिस, कैथेप्सिन जी, ये भी एक प्रोटीज है जो कि ये रिलीज करते हैं न्यूट्रोफिल। इसी तरह प्रोटीनेज 3 ये भी है। सो इसका जो फंक्शन है, इट कॉजेज इनहिबिशन ऑफ दीज प्रोटीएजेस। जो आपका अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन है, ये इनको इनहिबिट करता है। सो इसीलिए इसको प्रोटीएज इनहिबिटर भी कहते हैं। सो इसका नाम अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी भी है और अल्फा 1 प्रोटीएज इनहिबिटर डेफिशिएंसी भी है। ठीक है, ये दो नाम है इस बीमारी के, ये आपने याद रखना है। सो अब जब ये जी पावरफुल एंजाइम्स से ये बचाता है बॉडी को, जिन्हें कि हम न्यूट्रोफिल इलास्टेजेस कहते हैं। अब ये न्यूट्रोफिल इलास्टेजेस जब ये नहीं होगा एंजाइम, तो ये बिल्कुल फ्री हो जाएंगे और ये क्या करेंगे, ये डैमेज करेंगे। और इलास्टिन जो है उसको, ये इलास्टेजेस का मतलब है इलास्टिन को ब्रेक करते हैं। और इलास्टिन कहाँ कहाँ होता है? लिवर में भी होता है, लंग्स में भी होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इलास्टिक ऑर्गन्स हैं बॉडी के, वो ये सबसे पहले लंग है, फिर लिवर है। सो जो लिवर है वो जब डैमेज होता है तो उसकी वजह से आपकी लिवर डिजीज होती है। जब लंग डैमेज होता है तो एम्फाइसीमा डेवलप हो जाता है, राइट? रिकरेंट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस, क्रॉनिक पल्मोनरी ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज हो जाती है। सो इसीलिए इन पेशेंट्स में दे प्रेजेंट विद cirrhosis because of effect on the liver and COPD because of effect on the lung. So the most common association alpha 1 antitrypsin deficiency की emphysema और cirrhosis of liver। फिर कुछ और भी एरियाज हैं। फॉर एग्जांपल एडिपोज टिश्यू जो है, अगर उसको डैमेज करेगा तो क्या होता है, उसका डैमेज हो तो उसकी इन्फ्लेमेशन हो जाएगी। सो इन्फ्लेमेशन ऑफ सबक्यूटेनियस टिश्यू इज कॉल्ड पेनिकुलाइटिस। ये एक टर्मिनोलॉजी है कि लंग को डैमेज हुआ एम्फाइसीमा, लिवर को हुआ सिरोसिस, सबक्यूटेनियस टिश्यू को हुआ पेनिकुलाइटिस। किसी आर्टरी के अंदर, आर्टरी भी बहुत इलास्टिक होती हैं, उनके अंदर डैमेज हुआ तो क्या होगा, आहिस्ता आहिस्ता वो कमजोर होंगी, और कमजोर होंगी तो क्या होगा, ब्लड के प्रेशर की वजह से एन्यूरिज्म डेवलप हो जाएंगे। सो आर्टीरियल एन्यूरिज्म, फिर ब्रोंकिक्टेसिस हो सकता है। इसी तरह वेस्कुलाइटिस, वैगनर्स ग्रेनुलोमेटोसिस, ये एक वेस्कुलाइटिस है जो कि एसोसिएट होता है इस बीमारी के साथ। अब इसमें भी म्यूटेशन होती है, ये याद रखना है आपने। सर्पीना 1 जीन जो है, SERPINA1 जीन, दिस कॉजेज एन अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी। सो सर्पीना 1 की अगर म्यूटेशन है तो उसमें ये डेफिशिएंसी होती है। अब इस बीमारी का कोई ट्रीटमेंट नहीं है, कोई क्योर नहीं है, और सिंपल ओनली वन क्योर के स्वीयर डिजीज अगर है तो फिर हम लिवर ट्रांसप्लांटेशन कर देते हैं। ठीक है, बाकी स्पोर्टिव ट्रीटमेंट है कि सिरोसिस का स्पोर्टिव ट्रीटमेंट करेंगे आप, COPD वाले पेशेंट को ब्रोंकोडायलेटर्स देंगे, ऑक्सीजन देंगे एंड ब्ला ब्ला। नेक्स्ट इन द लिस्ट ऑफ इनहेरिटेड liver diseases is neonatal jaundice या neonatal cholestatic jaundice। कोलिस्टेसिस का मतलब क्या होता है? कोलिस्टेसिस का मतलब है कि जब बाइल कैन नॉट फ्लो फ्रॉम द लिवर टू द ड्यूडेनम, इट इज कॉल्ड द कोलिस्टेसिस, राइट? अब ये इंपॉर्टेंट 3 चीजें हैं जो आपने याद रखनी है इसमें। कंजेनिटल हाइपरबिलिरुबिनीमियास इन्हें हम कहते हैं, यानी बच्चों को पैदाइश के वक्त ही ये बीमारी होती है। सो न्यूनेटल जॉन्डस तो आपको पता है कि बच्चे जो हैं उनको नॉर्मली सेकेंड डे पे फिजियोलॉजिकल जॉन्डस होता है, ठीक है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि फिजियोलॉजिकल नहीं होती हैं। उनमें जो है वो गिलबर्ट सिंड्रोम, क्रेगलर नाजार सिंड्रोम एंड ड्यूबन जॉनसन, ये 3 चीजों को याद रखना है आपने। गिलबर्ट जो है ये, इसमें अनकंजुगेटेड हाइपरबिलिरुबिनीमिया होता है। याद रखना है कि बिलिरुबिन आरबीसीज की ब्रेकडाउन से बनता है। अल्टीमेटली ये जो बिलिरुबिन है ये आता है लिवर के अंदर, और लिवर में ये कंजुगेट होके, और कॉन्जुगेटेड फॉर्म इसकी जाती है थ्रू द बाइल इनटू द इंटेस्टाइन, और इंटेस्टाइन में थ्रू द फीसिस ये बाहर निकल जाता है। सही है। लेकिन ये जो गिलबर्ट सिंड्रोम है इसमें क्या होता है, इसमें अनकॉन्जुगेटेड हाइपर, यानी कि जो बिलिरुबिन है वो अंदर जा ही नहीं सक रहा, लिवर के अंदर ही नहीं जा सक रहा, जिसकी वजह से प्रीडोमिनेंटली अनकॉन्जुगेटेड हाइपरबिलिरुबिनीमिया होता है, राइट? ये भी एक फेमिलियल और बिनाइन डिजीज है, यानी इसका कोई डैमेज नहीं होता बॉडी पे।
और ये रहती है, पेशेंट लिव्स विद इट। बिनाइन डिजीज है और ऑटोसोमल डोमिनेंट मोड ऑफ इनहेरिटेंस है इसका। 5% जनरल जो पॉपुलेशन है उसमें ये प्रॉब्लम होती है, ठीक। अब इसमें जो माइल्ड डेफिशिएंसी और डिक्रीज हेपेटिक लेवल ऑफ बिलिरुबिन, ये आपने याद रखना है कि कौन सा एंजाइम है, बिलिरुबिन ग्लूकोरोनाइल ट्रांसफरेज। ग्लूकोरोनाइल ट्रांसफरेज एक एंजाइम है जिसकी कि या डेफिशिएंसी होती है या फिर वो कम होता है, राइट। और इसके जो इनकोडिंग जीन है वो म्यूटेशन होती है उसकी, और उसकी वजह से ये बनता नहीं है ये वाला एंजाइम्स, ठीक है। अब इस जीन में अगर पॉलीमॉर्फिज्म होगा, पॉलीमॉर्फिज्म क्या होगा, पॉलीमॉर्फिज्म किसे कहते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म ये कहते हैं कि अगर फर्ज करें 50% जो उसके बनाने वाले जीन है उनमें बीमारी है, 50% में नहीं है, तो क्या होगा, बैलेंस होगा और बीमारी नहीं होगी। अगर 60% जो है वो बीमार वाले जीन है और 40% सही वाले हैं, तो फिर बीमारी होगी लेकिन माइल्ड होगी। लेकिन अगर 100% बीमारी वाले जीन हैं, यानी एबनॉर्मल जीन हैं जो कि ग्लूकोरोनाइल ट्रांसफरेज बनाते हैं, सो बहुत सीवियर बीमारी होगी, सही है। इसीलिए हम कहते हैं कि इसका वेरिएबल एक्सप्रेशन ऑफ द डिजीज होता है। सीवियर बीमारी से मुराद ये नहीं है कि बंदा बहुत सीरियस हो जाएगा, बस ये कि उसका जो बिलिरुबिन के लेवल्स हैं वो शो करते हैं कि वो कितनी डिजीज कम है या ज्यादा है। अब इन पेशेंट में होता क्या है कि जॉन्डस होता है विच इज माइल्ड एंड फ्लक्चुएटिंग और अननोटिस्ड, ईयर्स तक अननोटिस जाता है। और ये जब कभी स्ट्रेस हो बंदे को, जब कभी फास्टिंग में हो या इन्फेक्शन हो, तो फिर ये ज्यादा नमूदार होता है, ये वाला जॉन्डस है, ठीक है ना। इसमें बिलिरुबिन माइल्डली एलिवेटेड होता है एंड इट इज द ओनली एबनॉर्मेलिटी। ठीक है, LFTs जो हैं दे आर नॉर्मल, ये याद रखना है। और कोई इसके साथ मॉर्बिडिटी नहीं होती, देयर इज नो एसोसिएटेड मॉर्बिडिटी। क्रिगलर नाजार जो है इट्स एन ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर और अनकॉन्जुगेटेड हाइपरबिलिरुबिनीमिया इसमें होता है, इसमें भी अनकॉन्जुगेटेड है। अब ये दो टाइप्स की हैं, इसमें एक जो है ज्यादा स्वीयर वाली फॉर्म है जिसमें कंप्लीट एब्सेंस होती है UDP ग्लूकोरोनाइल ट्रांसफरेज 1, ठीक है। और दूसरी जो है टाइप 2, उसे उसमें रिड्यूस लेवल होते हैं दिस UDP ग्लूकोरोनाइल ट्रांसफरेज 1 के, ठीक है ना। सो यहाँ पर ये है कि कितना ज्यादा स्वीयर डिजीज है, तो वो डिपेंड करता है कि कितना डिफेक्ट है, सही है। सो ये वो पेशेंट है जिनमें कि बहुत स्वीयर डेफिशिएंसी होती है जिसकी वजह से बिलिरुबिन बहुत हाई, पैदाइश पे ही बहुत हाई होता है। और आपको पता है कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसका जो ब्लड ब्रेन बैरियर है वो मैच्योर नहीं होता, और अगर बिलिरुबिन एक खास लेवल से ऊपर चला जाए तो इट कैन कॉज फिट्स एंड दिस इज कॉल्ड कर्नेक्टरस। सो बच्चों में बिलिरुबिन का लेवल, इन बीमारी वाले बच्चों में, टाइप 1 वालों में मोर देन 20 मिलीग्राम पर डेसीलीटर हो जाता है बिलिरुबिन, नॉर्मली लेस देन 1 होता है बॉडी के अंदर। सो जब ये ज्यादा होगा तो कर्नेक्टरस, जिसकी वजह से फिट्स पड़ेंगे और डेथ्स हो जाती है, ठीक है। जबकि टाइप 2 जो है जिसे कि हम आरिया सिंड्रोम भी कहते हैं, उसमें ये वाला जो UDP ग्लूकोरोनाइल ट्रांसफरेज 1 है ये होता है, लेकिन ये पूरी मिकदार में नहीं होता, यानी कि रिड्यूस्ड लेवल होते हैं इसके, इसमें बिल्कुल ही नहीं होते। सो जब इसमें रिड्यूस लेवल होंगे तो बिलिरुबिन कुछ ना कुछ क्लियर ऑफ हो रहा होगा, इसीलिए बिलिरुबिन के लेवल लेस देन 20 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। और इस इन केसेस में बाइल पिगमेंटेड इंस्टेड ऑफ पेल और डार्क एज नॉर्मल। तो बाइल जो है इनका वो जरा पिगमेंटेड होता है ज्यादा। अगर आप बाइल का सैंपल ले लें किसी तरीके से, लाइक कि आप एंडोस्कोपी के जरिए जाके ड्यूडिनम में जहाँ बाइल गिर रहा होता है लिवर से, वहां से बाइल को निकालें, उसको देखें इन पेशेंट में, तो वो ज्यादा डार्क होता है एज कम्पेयर टू नॉर्मल जो पेशेंट हैं जिनमें कि ये पेल होता है, ठीक है। अब ये वाले जो टाइप 2 वाले पेशेंट हैं इनमें भी कोई रिस्क नहीं होता कनेक्टर्स का, ठीक है। एंड लास्टली वी हैव नो ड्यूबन जॉनसन सिंड्रोम और रोटर सिंड्रोम। सो ड्यूबन जॉनसन जो है ये भी एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है जिसमें कि कॉन्जुगेटेड। अच्छा, अब इसमें डिफेक्ट क्या होता है कि बिलिरुबिन बना हेमोलिसिस से लिवर में आ भी गया, अब लिवर से बाहर नहीं निकल सकता, ठीक। क्यों?
क्योंकि बिलिरुबिन की जो एक्सक्रीशन है वो होती है कैनालिकुलर कैटायनिक ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। ये एक ट्रांसपोर्ट प्रोटीन होती है जो कि कैनालिकुलाई कहते हैं चैनल्स को। सो जो इंट्रा हेपेटिक चैनल्स होते हैं उनके अंदर जब बाइल हेपेटोसाइट के अंदर होता है ना ये बाइल, दिस बिलिरुबिन जब कॉन्जुगेटेड फॉर्म है, और वो आता है बेसिकली इन चैनल्स के अंदर, कैनालिकुलाई के अंदर। सो जब ये एंजाइम एब्सेंट होता है तो ये जो है ट्रांसपोर्ट प्रोटीन एब्सेंट होती है, तो फिर ये वाला जो कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन है ये बाहर आ ही नहीं सकता। उसकी वजह से कॉन्जुगेटेड हाइपर बिलिरुबिनीमिया होता है। और इनमें क्या होता है, क्लिनिकल कुछ भी नहीं होता, सिर्फ आप उसका लिवर अगर आप देख लें, कोई सर्जरी हो रही हो या कोई आप वैसे ही अगर ऑटोप्सी पे देखते हैं उन पेशेंट्स को, तो इनका लिवर बस ब्लैक होता है। क्यों? क्योंकि इसमें पॉलीमराइज्ड एपिफ्रीन मेटाबोलाइट्स हो जाते हैं, डिपॉजिट हो जाते हैं, ठीक है ना। सो ये एक ओनली एब्नॉर्मैलिटी होती है। लास्टली इज द रोटर सिंड्रोम। ये भी एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है और इसमें भी कॉन्जुगेटेड हाइपरबिलिरुबिनीमिया होता है। अब इसमें क्या होता है कि इंट्राहेपेटिक बाइंडिंग नहीं होती। अब ये जो बिलिरुबिन जब कॉन्जुगेट हो जाता है तो ये एक खास किस्म की प्रोटीन, जो मैंने पीछे बताया था ना कि ये कैटायनिक ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है, इनके साथ कंबाइन करता है और फिर बाहर निकलता है। तो पहले पिछले वाले में यानी कि जो ड्यूबन जॉनसन था उसमें तो वो प्रोटीन ही नहीं मौजूद होती है ना, जबकि रोटर में क्या होता है कि वो प्रोटीन मौजूद होती हैं लेकिन जो उनको बाइंड करवा रही होती है फोर्स वो नहीं होती है। यानी इंट्रा हेपेटिक बाइंडिंग नहीं होती है। उसकी वजह से क्या होता है कि जो बिलिरुबिन है वो बाहर नहीं निकल सकता। सो इट इज सिमिलर टू ड्यूबन जॉनसन विदाउट लिवर पिगमेंटेशन। अब इसमें जो है लिवर की पिगमेंटेशन नहीं होती, बस ये एक वो है। अच्छा, अब इसके लिए हम एक टेस्ट करते हैं जिसे हम कहते हैं ब्रोम सल्फा थैलीन थैलीन टेस्ट। ब्रोम सल्फा थैलीन ये एक जो है वो पिगमेंट होता है जो कि हम पेशेंट को इंजेक्ट करते हैं या उसको देते हैं, और फिर हम देखते हैं कि ये जो ब्रोम सल्फ थैलीन है, ब्रोम सल्फ थैलीन, ये जैसे कि हम रेडियो एक्टिव टेस्ट करते हैं ना, किसी का थायराइड का रेडियो एक्टिव टेस्ट करते हैं कि एक रेडियो एक्टिव मटीरियल देते हैं और वो थायराइड हार्मोन के साथ जाके टैग हो जाता है और फिर हम उसको डिटेक्ट करते हैं। इसी तरह ये ब्रोम सल्फ थैलीन जो है ये भी जाके टैग हो जाता है बिलिरुबिन के साथ, और ये हम फिर डिटेक्ट करते हैं कि ये कितना एक निकला है बाहर इंटेस्टाइन में। सो क्योंकि ये एक्सक्रीटरी डिफेक्ट होता है तो इसमें ये टेस्ट एबनॉर्मल होगा, तो इसके क्लिनिकल कोई कॉन्सिक्वेंसेस नहीं होते हैं, राइट। So we have finished on, almost time is also over, but if any one of you wants to ask any question, so I'll just tell them to uh, on your mic, and if you want to ask any question then you can ask me. हाँ जी, इनके जरा माइक ऑन कर दो, किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना था, अभी 2 मिनट हैं। आओ जी, किसी का कोई क्वेश्चन है? Okay, as usual, no questions. Thank you very much. Take care.
Exactly.